Sir, you are no sir, Sir, your nothing, voice is lagging. nothing, sir. So Sorry, sir. no issue. So the thing is, we see that at any random point, say at this point, total energy is given by sum of K and U, which K is kinetic energy and U Sir, you're is not potential audible. energy. Am I not audible to everyone? Sir, your voice is clear, sir. Audible, sir. This is fine, sir. Sir, you're audible. But you check your internet connection. So this is how you see here, red arrow, it becomes 0 and maxima. It is fluctuating in between 0 and maxima. Similarly, the blue arrow, at which red arrow becomes maxima, blue arrow becomes 0, and at which point when red arrow becomes maxima, minima, blue arrow becomes maxima. So energy is exchanging in between kinetic and potential energy part. Two extreme points we have only potential energy, you see here, and at mean position we have only the kinetic energy, because velocity is maximum at mean position and it is 0 at the two extreme position when x is equal to -a or +a. Okay, so we have done this thing in yesterday's lecture. So, कल के लेक्चर में इतना ही हुआ था? मुझे कल के लेक्चर में we have started with the simple harmonic motion. We have given the definition, we have derived the differential equation for simple harmonic motion. Then we have assumed that it has a particular type of solution, either sine or cosine function, depending upon your boundary condition. Then we have moved on to the energy conservation. We have derived the time period as well as frequency of simple harmonic motion. तो सर कल का लेक्चर हम एलएमएस पे देख सकते हैं? आपने देखा नहीं इसका मतलब. So it is already already there. Okay, thank you. Sir, 1 minute. Can you go to previous slide? Here, sir. हाँ जी विजय. So there is no link there on the website. Which website? Thapa website. About what? So CH1, you were our old previous teacher, right? So it is already shared on the website. You have to look for the teacher with name DPS, DP Singh. So you'll get the detail of lectures. Okay, thank you. And yesterday's lecture is available on Moodle, so don't worry. Okay, ji? So this diagram, this two diagrams, it also shows the variation of energy, that is potential energy and kinetic energy with time. So you see here on y-axis we have potential, which is given by this line, and potential energy is given by this line, this color. So on x-axis we have time, and you see here when potential energy is maxima, kinetic energy becomes 0, and when kinetic energy is maxima here at this point, potential energy will become maxima. And in between at any other random point, say this and so say at this time, total energy is given by sum of potential energy and kinetic energy. Further, it is explained in this graph. This is displacement towards left side and right side. In magnitude, amplitude is +a. In negative direction, it is -a. In positive direction, it is +a. So the potential energy is maxima at two extreme points, and it is 0 at mean point. Whereas kinetic energy is maxima at mean point and it is 0 at extreme point. So opposite nature है. अगर एक decrease कर रहा है तो दूसरा increase करेगा. ठीक है जी? Further, this is comparison of energy. ये आपकी diagram है simple pendulum की वजह. Pendulum case, ठीक है? And this is of spring mass combination. So how the things are changing here, it is shown in this table. So we have time starting from 0, t/4, t/2, 3t/4 and t, corresponding displacement, velocity and acceleration, and kinetic energy and potential energy. So when spring is at extreme position, that is at t is equal to 0, we have x is equal to +a.
So solution is x is equal to a cos omega t. Corresponding velocity and acceleration is given. Velocity is 0 at extreme position, and acceleration is omega square a maximum, but in opposite direction. Negative sign is there. Also, kinetic energy is 0 at extreme position. Okay, and potential energy is maxima at extreme position. Similarly, with the passage of time, that is t by 4, t by 2, 3t by 4, and t in a given period of cycle, the amplitude is varying like this, and corresponding change in velocity and acceleration and kinetic energy, they are shown in this table. Okay. So can we draw this? Which one? So this table. Yes, you can draw. And moreover, this is also available on LMS Moodle website. So you can look for this table on the video as well. So later you can also draw. Okay, ji? So can you please provide the slides separately? They're always on video. I will provide. Thank you, sir. Sir, हाँ जी विजय. sir, can you please repeat how these values came? In previous class, we have learned about how to calculate these values. Mean point पे values क्या होंगी, extreme point पे क्या होंगी. So you can go through that lecture. ठीक है? Okay, sir. तो कल आप डैम्पिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, इसलिए आपको इसका आइडिया नहीं लग रहा होगा, है ना? सर वो पहले पढ़ा ना था सर, इसलिए पूछ रहा हूं. हाँ, बिल्कुल. So you go through that lecture. If you do find any difficulty, you can ask later on. Okay. So can I move to the next slide? So doubt. So how did we come to that simple pendulum ki jo potential energy that's equals to half kx square? Where Is it it, by I have, comparing with the it is just a comparison. In this simple pendulum case, I am comparing with the extreme point and mean point. That's it. Not the energy. So this is the kinetic energy and potential energy of spring mass system. Yes, sir. This is the analogy for just showing the comparison. Okay, so for potential energy, I mean, so for spring mass system, the potential energy is not half kx square, right? No. Thank you, sir. So what is the potential energy then? If a body is at a particular height, okay, mgh. Yes, mgh. Yes. So then we have to consider the electrical analog of this simple harmonic motion. So do you know any circuit which has a similar equation or which behaves similarly as that of simple harmonic motion? So हमने देखा कि kinetic energy और potential energy is exchanging between the total energy is exchanging between kinetic part and potential part. Okay, at any random time, total energy is given by the sum of these two components. At extreme point, we have only potential energy, so total energy is potential energy only. At mean point, we have only kinetic part. Okay, so any example of that particular circuit? It is LC circuit. LC oscillation. LC सर्किट का कोई और नाम आपको जो नोन हो या फेमिलियर हो आप इस LC सर्किट से किस काम के लिए यूज होता है बच्चे? इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट सर. Obviously, L and C, inductor and capacitor. But what is the purpose of using that circuit? Sir, LC oscillations. Yes, this is meant for oscillation. ये आपको oscillation produce करके देगा. ठीक है जी? So इसमें क्या होगा? आपका जो potential energy part है, that is stored in the capacitor. ठीक है, half q square by c, and the kinetic energy part is stored in the inductor, half Li square kinetic energy part, and they are exchanging their energy. When capacitor is fully charged, it will discharge by giving its energy to the inductor, and when inductor is fully charged, it has maximum energy, it will discharge through charging the capacitor, and so on. So that is how they are creating the oscillations. Okay, so this is the typical example. Capacitor connected with the inductor and in a LC circuit. ठीक है, so आपके पास ये capacitor है, ये inductor है, this is key. ठीक है, so let us assume that maximum charge on the capacitor is Q max. जैसे आपने वहां मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने assume किया कि maximum amplitude is A plus minus.
सिमिलरली यहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ तो वेरिएबल होगा ना. In mechanical simple harmonic motion, you have variable displacement, and here in LC circuit we have the variable charge. ठीक है जी. And corresponding हमारे पास इंडक्टर भी है. So इसको सिंपल रखते हैं हमसे. If we apply Kirchhoff's law onto this circuit for calculating the equation of voltage, ठीक है. So क्या होगा? Current voltage on the capacitor is Q by C. And voltage across the inductor is L di by dt. ठीक है? Yes, So, also we know that I is equal to dq by dt, rate of change of charge with respect to time. So if I substitute all these value, I'll get the voltage equation as q by c plus L di by dt को मैंने I की value substitute की, तो it will become d square q by dt square equals to 0. There is no applied voltage, so मैंने यहाँ 0 रख दिया. ठीक है जी. So हमारे पास जो सिंपल इक्वेशन है वो आ गई, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी क्यू इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अवर इक्वेशन फॉर एलसी सर्किट. डज दिस? हाँ जी बच्चा. सर ये जो q by c plus l d square by dt square equal to 0 डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, इसका डेरिवेशन अपने को कोई है क्या सर, कैसे होगा? मुझे इफ यू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ ऑन टू दिस सर्किट, वोल्टेज इक्वेशन आपने निकालनी है. ठीक है. सो कैपेसिटर पे वोल्टेज क्या है? q by c प्लस इंडक्टर पे वोल्टेज क्या है? L di by dt. और अप्लाइड वोल्टेज कोई है नहीं, तो मैंने इसको 0 लिख दिया. सो और x को अपन ने हाँ सर d हाँ I की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू. ठीक है. सो हाँ जी बच्चा. सर अगर हम यहाँ पे Q का फिर से वो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें करंट निकालने के लिए, तो वो साइन में बन जाएगा ना फंक्शन. हाँ, तो हम ऐसे कह सकते हैं मतलब कि उसका फेज डिफरेंस करंट का चार्ज से 90 डिग्री होगा, मतलब कॉस के फंक्शन से साइन हाँ के कह function- सकते हैं. तो ये उसमें चार्ज मतलब ये मुझे आर्टिकल कंप्लीट करने दो, फिर आपको क्लैरिटी आएगी कि हाउ फेज डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड करंट इज देयर. ठीक है. तो वहां से क्लियर हो जाएगा आपको. मैं इसको पूरा टेबुलर फॉर्म में दिखाऊंगा आपको. So this is our equation for LC circuit. This equation is exactly same as that of mechanical simple harmonic motion, but difference क्या है? यहाँ पे variable charge है as compared to displacement there. ठीक है. तो solution भी हम same ही assume करते हैं फिर. Q is equal to Q naught या Q max, आप जो भी notation use करना चाहो, cos omega t plus phi. ठीक है जी. Because we have assumed that potential capacitor is fully charged at t is equal to 0. ठीक है. So amplitude maximum होगा. When अगर t 0 पुट करोगे तो cos, if I phase 0 assume करें, तो cos 0 वैल्यू 1 होगी. So Q will be Q max at t is equal to 0. यही हम लेके चल रहे हैं. So यहाँ से हम अगर 1 by LC को हम ओमेगा स्क्वायर लिख दें, तो ओमेगा becomes 1 by LC स्क्वायर रूट. ठीक है जी. सिंपल LC सर्किट की फ्रीक्वेंसी जो है. So ये आपके पास इक्वेशन भी आ गई, उसका सोल्यूशन भी आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी आ गई, है ना. तो इससे आप टाइम भी निकाल सकते हो और टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी. सो अब इसमें अजम्पशन हमने क्या लगाई है? कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज एंड स्विच इज देन क्लोज्ड. ये हमने किया. वी फाइंड दैट both the current in this circuit and charge on the capacitor oscillate between maximum positive and negative values. So ये plus minus values आपको देता जाएगा. जैसे capacitor and inductor, they are exchanging. ये इसको एनर्जी देगा, ये इसको एनर्जी देगा, ये वापस इसको एनर्जी देगा, ये वापस इसको. So they keep on exchanging the energy between them. और ये अज्यूम हमने किया कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0. इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी 0, अदरवाइज क्या होगा? आपका एनर्जी लॉस होगा. सो दैट विल नॉट बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये ऑसिलेशन नहीं होगा, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा. एम्पलीट्यूड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो हमने अज्यूम कर लिया कि रेजिस्टेंस इन सर्किट इज 0 सो दैट नो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू इंटरनल एनर्जी. सो ये हमारी अजम्पशन है. ठीक है. नाउ द पोटेंशियल एनर्जी, the energy stored in the LC circuit. So potential energy is half kx square in mechanical circuit. ठीक है. Stored in the stressed spring is analogous to electrical potential energy. So हम analogy देख रहे हैं अब. वहां हमारे पास potential energy थी, यहाँ electrical potential energy है half CV square. ठीक है. electrical potential energy is half CV square या half Q square by C, जो भी आप notation use करना चाहो.
stored in the capacitor. Also, kinetic energy is half mv square in mechanical circuit, mechanical oscillator, and corresponding electrical version is magnetic energy half Li square in the inductor. So ये आपने पहले +2 में या +1 में पढ़ रखा है कि ये energy Yes, stored in inductor is half Li square. So which requires, so अब इसकी condition क्या है? Which requires the presence of moving charges. Static charges ये energy नहीं produce करेंगे, ठीक है? Because अगर static charge होगा तो current 0 हो जाएगा. Charge has to move. So when the capacitor is fully charged, सर हाँ जी बच्चे, सर ये एनालॉगस मतलब एनालॉगस मतलब अगर आप दो सर्किट को बोल रहे हो, मैकेनिकल वर्जन है और उसको इलेक्ट्रिकल वर्जन है, दोनों सेम ही इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, सो जो उनकी अगर हम क्वांटिटी कंपेयर करें कि एक सर्किट में क्या क्वांटिटी हम यूज करें, जैसे ए मैकेनिकल में हम डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल में हम उसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग है चार्ज यूज कर रहे हैं. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखें कि इसके बराबर जैसा कौन है, तो वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. Kinetic energy of mechanical part हम देखें तो वो है magnetic energy half Li square energy stored in the inductor. ठीक है? So when a capacitor is fully charged, the energy U in the circuit is stored in the electrical field of capacitor. So capacitor के पास electrical field है और inductor के पास magnetic field है. ठीक है जी? So अब potential energy क्या होगी? Sir, you're not audible. I'm not audible. No, sir, you are. यू आर ऑडिबल. तो बच्चे चेक योर कनेक्शन. Sir, you are. तो टोटल एनर्जी, हाँ जी बच्चे. सर मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा पूरे सर्किट में. बच्चे कैपेसिटर इज फुली चार्ज, उसके लिए तो आपको पहले कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा ना. एक्सटर्नल फोर्स लगाई है आपने उसमें, पहले उसको फुली चार्ज किया है, तब उसको सर्किट में डाला है अपने इंडक्टर के साथ. ठीक है, तो मतलब एनर्जी पूरी कंजर्व रहेगी या फिर ऑसिलेट करेगी एनर्जी? अभी वही मैं बता रहा हूँ, मुझे आने तो दो उस पे. अच्छा ओके. सो U is the in the circuit is stored in the electrical field of the capacitor. अब क्या है उसकी एनर्जी? Q square by 2c. So जो आपने पहले पढ़ रखा है कि half CV square या Q square by 2c. This is the energy stored in the capacitor. ठीक है, so टोटल एनर्जी है हमारे पास कैपेसिटर में जो एनर्जी है और इंडक्टर में जो एनर्जी है. कैपेसिटर में एनर्जी है हाफ, आप ऊपर भी लिखा है हाफ CV स्क्वायर भी हो सकता है, हाफ Q square by c, जो भी नोटेशन आप यूज करना चाहो, जो भी वर्जन. सो इसको Q square by 2c is potential energy, electrical potential energy which is stored in the electrical field. एंड प्लस काइनेटिक पार्ट है हाफ Li स्क्वायर. अब इसको काइनेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें करंट इन्वॉल्व है, सो मूविंग चार्ज इन्वॉल्व है. ठीक है जी. सो ये है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इंडक्टर हाफ Li स्क्वायर. ये टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व है. ठीक है जी. सो अगर आपको बोला जाए कि टोटल एनर्जी कंजर्व है, प्रूव करो, सो आप इसको du by dt, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेके जीरो को इक्वल प्रूव कर दो. आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टोटल एनर्जी टू बी कंजर्व. ठीक है जी. अब आपके पास चार्ज की इक्वेशन तो थी आपके पास, Q is equal to Q max cos omega t plus phi. Can you prove that this U is constant? Can you prove? Yes, sir. Yes, Yes, sir. आपके पास Q स्क्वायर है, सो ये वैल्यू आप सीधी यहाँ पुट कर दोगे. ठीक है जी. और आपके पास है I. Sir, और फिर I में I है Q Q डॉट डॉट, डिफरेंशिएट कर देंगे. Q डॉट which is dq by dt. ठीक है. सो ये कॉस वाला फंक्शन है, इसको एक बार डेरिवेटिव लोगे ये साइन वाला फंक्शन बन जाएगा. ठीक है जी. सो जब कॉस और साइन, जब चीजें कॉमन निकालोगे आप, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस 1 वो 1 हो जाएगा आपके पास. सो सिंपली वो जब सॉल्व करोगे तो आपके पास यही चीज आएगी Q max स्क्वायर बाय 2c. इसमें आपको जो यूज करना होगा वो यूज करना होगा रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय L की स्क्वायर रूट. सो ये जब आप यूज करके वैल्यू पुट कर, क्योंकि आपके पास टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है ना, तो ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव भी करोगे, सो आपके पास एडिशनल टर्म ओमेगा साथ में मल्टीप्लाई होके आएगी. सो वो उसकी वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ L एंड C पुट करोगे तो ये सिंप्लीफाई होके कांस्टेंट वे, बिकॉज Q max is constant. This is the charge on the capacitor at time t is equal to 0 and it is fixed. ठीक है जी. So Q square by 2c is a constant number. So that is how you can prove that total energy is conserved inside an टैंक सर्किट और ऑसिलेटरी सर्किट. ये LC सर्किट सर आपकी आवाज कट रही है. बच्चे मेरी आवाज क्लियर है? नहीं सर, कट रही है बीच में. सर बिल्कुल क्लियर आ रही है. सर मतलब हम ऐसा रह सकते हैं कि करंट इनिशियली भी तो मैक्स हो सकता है इंडक्टर के थ्रू. हाँ बच्चे, मैं अभी उसका वर्जन दिखाता हूँ आपको भी. ठीक है. सो अब यहाँ देखो बच्चे, ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ LC सर्किट का SHM, मैकेनिकल SHM. सो अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये मीन पोजीशन है अगर मेरी,
ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 0 पे प्लस a है, तो इस केस में एलसी सर्किट में होगा अपर वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे वाली नेगेटिव। सो फील्ड जनरेट हो रहा है यहाँ पे। सो एनर्जी इज q मैक्स स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। यहाँ कोई एनर्जी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज देयर, यहाँ भी सिर्फ कैपेसिटर में होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 होगी। अब जैसे ही मैं मीन पॉइंट पे लेके आता हूँ मास को, यहाँ क्या हो जाएगा मीन पोजीशन t/4 टाइम पे। अब टाइम भी वेरी हो रहा है साथ में, तो क्या होगा, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है और नीचे वाली प्लेट पे भी कोई चार्ज नहीं है। सो चार्ज इज 0। अब चार्ज 0 होते ही क्या चीज हो जाएगी मुझे, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, सो Q बिकम्स 0, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बिकम्स 0, ठीक है। बट अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे आर पासिंग थ्रू द इंडक्टर, सो यहाँ पे आपके पास हाफ Li², ठीक है। सिमिलरली आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t/2, जब मैं लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम पॉइंट पे आऊंगा, दैट इज x इज इक्वल टू -a, तो यहाँ पे क्या होगा, अब चार्ज प्लेट्स जो है अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं। बिगिनिंग में ये प्लस थे ऊपर वाली प्लेट, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गई और नीचे वाली पॉजिटिव हो गई, ठीक है। सो पोलैरिटी चेंज हो गई। अगेन पोटेंशियल एनर्जी q मैक्स स्क्वायर बाय 2c इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ फिर से 0, क्योंकि देयर इज नो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और एक्सट्रीम पॉइंट पे देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, सो यहाँ पे ये 0 हो गई, ठीक है। सो दैट इज हाउ with the change in position and passage of time, mechanical circuit and electrical circuit, they are exchanging the energy, potential or kinetic energy in between them, so that total energy is conserved, ठीक है जी। अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था मुझे कि Q मैक्स चार्ज जो है वो टाइम के साथ किस तरह वेरी कर रहा है। अगर मैं Q इज इक्वल टू Q मैक्स cos ओमेगा t, ये वाला फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज। सो यहाँ पे आप देखो, ठीक है। सो आपका जो चार्ज है वो इस तरह वेरी कर रहा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट आपकी वेरी कर रही थी, ठीक है, ये उसी तरह वेरी कर रहा है। अब करंट कैसे वेरी करेगा, करंट इज dq/dt, सो ये क्या हो जाएगा, q मैक्स एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई, और साथ में ओमेगा भी साथ में होगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, नेगेटिव में जैसे चार्ज वेरी कर रहा था, करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वेरी करेगा। अब यहाँ देखो, ठीक है, तो ये मैक्सिमम था, ये 0 हो गया, क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया, ये कॉस था, ये साइन हो गया। अब ये जैसे ही डिक्रीज करना शुरू हुआ, ये बढ़ना शुरू हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो करंट का ये वेरिएशन आ गया। सो उसके बाद तो ये फंक्शन वेरी करता रहेगा, क्योंकि साइन और कोसाइन फंक्शन है, पीरियड तो सेम ही यूज कर रहे हैं दोनों। सो ये इस तरह वेरी करते जाएंगे, ठीक है। जैसे उस केस में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेरी कर रहे थे, इस केस में चार्ज एंड करंट वेरी कर रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज हाफ q मैक्स स्क्वायर बाय c, एंड सिमिलरली मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इज हाफ Li² होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और अगर करंट मैक्सिमम है तो इंडक्टर पे जो एनर्जी होगी U एट इंडक्टर इज हाफ Li मैक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मैक्सिमम इस पॉइंट पे जब आपने हाफ Li² लगा, इस पॉइंट में फिर चार्ज वाली कंडीशन 0 ले लेंगे। हाँ, चार्ज वाली कंडीशन 0 कैपेसिटर पे, यस सर, ठीक है जी। सो ये अब फर्दर t इज इक्वल टू 3/4t और ये t इज इक्वल टू t कैपिटल T टाइम पीरियड। सो ये आपको प्लेट्स पे चार्ज कैसे वेरी हो रहा है एज कंपेयर टू, और उसका जो मैकेनिकल एनालॉग है स्प्रिंग मास कॉम्बिनेशन, वो कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, तो ये वर्जन शो किया है। सो ये अगेन कैपेसिटर की एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो स्टोर हो रही है, और ये जो इंडक्टर की एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड में जो स्टोर हो रही है, ठीक है। सो ये वेरिएशन दिखाई हुई है, हाफ q² मैक्स बाय c, हाफ Li² मैक्स। सर हाँ जी बच्चे। सर एक डाउट था सर, जब सर्किट में सर जब चार्ज 0 हो जाएगा तो सर करंट मैक्सिमम कैसे होएगा? बच्चे वो करंट नहीं है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। सो उस करंट की वजह से जो पिछले टाइम पे आपका करंट चार्ज वेरी हुआ है, उसकी वजह से जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आया, ठीक है। ये कंटिन्यूस साइकिल है, ठीक है जी। सो यहां देखो बच्चे, अब ये देखो, सो q मैक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी ये भी कांस्टेंट रह रही है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका ये कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। अब अगर t इज इक्वल टू 0 पे मैं देखूं, देयर इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कैपेसिटर, नो काइनेटिक एनर्जी इज देयर ड्यू टू इंडक्टर। सो टोटल एनर्जी इज t इज इक्वल टू 0 पे uc प्लस ul लिखूंगा टोटल एनर्जी,
or t is at t is equal to 0, we have only u is equal to uc only. There is no kinetic energy part. Okay, so this is how the energy inside the capacitor and inductor varies. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. सर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तभी होगी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा. Obviously. Yes. और यहाँ नेगेटिव नहीं है बेटा. All these energies above x-axis टाइम के ऊपर है. So ये ओरिजिन है इनका. So it is decreasing but positive. Okay. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. What is the difference between mechanical charge and electrical charge? Mechanical charge, you can use the term mechanical charge क्योंकि आप mechanical बोल रहे हो, तो it means obviously there is displacement. So mechanical charge is displacement. ठीक है जी. So इसमें अगर कोई डाउट नहीं है बचे तो मैं नेक्स्ट आर्टिकल में चलूं. Yes, sir. So next article is damped oscillations. ये क्या होते हैं बच्चे? Damped oscillation. हाँ भाई. वो वेलोसिटी की वजह से जो होते हैं. हाँ. When there is a resistance between the circuit. Yes. So जो हमने अभी तक assumption लेके चली है, amplitude decrease कर रहा है. Damped harmonic. अब ये हार्मोनिक भी है साथ में. So जो बच्चे कल आपने क्वेश्चन पूछा था कि टाइम पीरियड सेम रहेगा कि नहीं, तो उसका आंसर अब आपको यहाँ मिलेगा. ठीक है. So damped harmonic motion is an harmonic motion with a frictional or drag force, negative force, है ना? Frictional force जैसे negative force. So consequently, the mechanical energy of the system decreases or diminishes with respect to time, and the motion is said to be damped. ठीक है. तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. अभी तक हमने किया कि स्प्रिंग मास सिस्टम, बट अगर हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसा हो जिसमें मास इज इमर्स इन द वाटर इन ए बीकर, सो दैट इज द डैम्प्ड. ठीक है जी. सो यहां जब आप ये ऑसिलेशन करेगा, सो इसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज करती जाएगी विद टाइम ड्यू टू ड्रैग और फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ वाटर. ठीक है. किसी टाइम पे तो जाके रुकेगा ना ये. सो आपके पास अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है स्प्रिंग मास सिस्टम, सो योर मोशन इज लाइक दिस. ठीक है. एंड इफ इट इज डैम्प्ड, सो यहां से स्टार्ट तो ये उतना ही होगा, सो यहाँ पे ये डिक्रीज करता जाएगा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बच्चे. आई हैव अ डाउट कि अगर ये स्टार्ट क्यों उतने से होगा, बिकॉज बायंसी फोर्स तो पहले ही लगेगी, लाइक वाटर में है. अगर फॉर एग्जांपल ये बीकर में हटा दूं, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि यहां से ए डिस्टेंस प्लस ए तक मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया. सो स्ट्रेच तो आप दोनों केसेस में एक्सटर्नल फोर्स लगा के कर दिया उसको t इज इक्वल टू 0 पे. समझ गए. सो t इज इक्वल टू 0 पे मैंने दोनों केसेस में उसको प्लस ए पे ही रखा है डिस्प्लेसमेंट पे. ये जो है प्लस ए. अब मैंने जब वहां प्लस ए पोजीशन से उसको रिलीज किया, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो वो प्लस ए वाली ऑसिलेशन पीरियोडिक रिपीट करता रहेगा, पर अगर डैम्प्ड है तो प्लस ए पे वापस कभी नहीं आएगा. यहाँ देखो ये इस तरह से डिक्रीज करता जा रहा है. सो दैट इज व्हाई. सो वी हैव टेकन, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ही सेम नहीं लेंगे, सो हमें नहीं मालूम चलेगा कि डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं कि नहीं. सो वी हैव टू कीप द थिंग स्टार्टिंग थिंग्स सेम इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द डिफरेंस ड्यू टू नेगेटिव फोर्स. ठीक है जी. सो ये इस तरह का बिहेवियर आपको डिस्प्लेसमेंट में दिखाएगा. एम्पलीट्यूड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके वो डिमिनिशेस, वाइप आउट हो जाएगा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी भैया. सर ये जो डैम्पिंग वाला जो फोर्स है, ये रेजिस्टिव फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब जो स्प्रिंग वाला फोर्स है. मैं समझा नहीं. अभी मैं उसका फोर्सेस की एग्जांपल भी देता हूँ मुझे आपको, सो उससे क्लियर हो जाएगा. So one student is asking, damping is due to viscosity of water. Obviously, drag जैसे एयर में अगर आप कोई एम्पलीट्यूड, मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको स्प्रिंग मास कॉम्बिनेशन एयर में ही बताया, बट हमने उसको अज्यूम किया था कि वो वैक्यूम में है. अगर एयर में करोगे एयर ड्रैग होगा. ड्यू टू एयर ड्रैग देयर इज नेगेटिव फोर्स एज वेल. सो इन द प्रेजेंट केस इट इज ड्यू टू वाटर. यस. ठीक है जी. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड in case of damped oscillations.
तो कौन कौन सी फोर्सेस होंगी बच्चे? एक तो हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। हाँ जी बच्चे। सर फेज रिमेन सेम राइट? यस। ओके सर एक तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। सो एक तो पहले मैं इसको जस्ट अ मिनट, मैं इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन तो लिख देता हूँ। F इज इक्वल टू माइनस kx रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। और कौन सी फोर्स होंगी? सर रेजिस्टिव फोर्स, Opposing और resistive force. डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। सो डैम्पिंग फोर्स होगी, दैट डिपेंड्स ऑन, नेगेटिव है ये भी, और वेलोसिटी पे dx by dt। सो वेलोसिटी डिपेंडेंट। सो इस केस में जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस वेलोसिटी डिपेंडेंट है, अगर आप फास्ट व्हीकल चला रहे हो तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, स्लो चला रहे हो तो कम हो जाएगा। दिस इज द वे। सो नाउ अगेन वी कैन रीराइट द नेट फोर्स F is equal to न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग m d square x by dt square। ये न्यूटन सेकंड लॉ मैंने डायरेक्टली लगा दिया, फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमारे पास फोर्सेस जो यहाँ पे हैं वो है माइनस के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स एंड माइनस ए डी एक्स बाई डी टी। ए इज ए कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। सर मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे एक ना? ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन। तो फिर मतलब जो डैम्पिंग फोर्स है वो स्प्रिंग को और ज्यादा कंप्रेस करवाएगा रिस्टोरिंग फोर्स वाले डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक बार माइनस और आना चाहिए सर, माइनस ए डी एक्स बाई डी टी प्लस, अगर वो नेट फोर्स निकाल रहे हैं हम तो शायद। मुझे आपकी जो सिंपल, जस्ट मिनट, सो ये जो इक्वेशन रिड्यूस होके आएगी आपके पास वो इस फॉर्म में आएगी, ठीक है जी। सर मेरा डाउट ये था कि वो मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ना नहीं चाहिए फिर, क्योंकि वो जो डैम्पिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में लगा रहे तो कंप्रेशन को तो बढ़ाएगा वो स्प्रिंग की। ये जो है एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है। सो अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे, अभी हम डिस्कस करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी आपकी? एक्सट्रीम पॉइंट जीरो। सो जब डैम्पिंग फोर्स ही एक्सट्रीम पॉइंट पे खत्म हो गई तो आप कैसे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे? सो ये विद द प्रोग्रेस ऑफ आर्टिकल आपको और क्लैरिटी आएगी। सो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ इक्वेशन को, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx by dt plus omega naught square x is equal to 0, where 2r is equal to a by m, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए, और ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k by m, ये स्प्रिंग मास वाला जो था हमारे पास, मैंने वो सेम नोटेशन यूज कर, ठीक है जी। where हाँ जी सर आप ये डैम फोर्स वाला फिर से बता सकते हो कैसे आया एक बार? Damp force wala, but this is an assumption. There may be other kind of damping force as well, but we have assumed that our damping force, the simplest damping force, is the one which depends on the velocity. ठीक है, अगर simple harmonic motion लेनी है, in that case force depends on displacement, and if you are considering the damped force, it depends on velocity. सर नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि वो नेट फोर्स में से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके सर। सर हाँ जी बच्चे। सर ये लास्ट इक्वेशन कैसे आई? अरे बताने तो दो अनीश। सर नेगेटिव साइन ओके इसलिए सर। कि डिक्रीज कर रहे हैं कि नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये वेलोसिटी के अगेंस्ट लगता है? बच्चे इट इज नेगेटिव फोर्स बिकॉज ये जो एक्चुअल फोर्स है हमारे पास इसको कम कर रहा है। जो हमारी जो हमारी साइनोसॉइडल वेव है उसको, उसका एम्पलीट्यूड को ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसकी क्लैरिटी अभी मैं और एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये जो बच्चे अनीश, यहाँ पे मुझे इस इक्वेशन में फॉर्म चाहिए थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, बिकॉज इफ आई नो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो इस ये जो इनिशियल इक्वेशंस थी इसको मुझे इस फॉर्म में लेके आने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ रही थी। इसमें मैंने 2r सब्स्टिट्यूट किया, किसे? a by m को, और ओमेगा नॉट स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया k by m को। सो ये मेरी सब्स्टिट्यूशन कर दी मैंने। अब मैंने ये इसलिए किया बिकॉज आई नो द सोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिक्स से मुझे ये मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो मैंने पहले अपनी वाली इक्वेशन को उस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब मैं डायरेक्टली वो इक्वेशन का सोल्यूशन फ्रॉम मैथमेटिक्स ये डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके सर। तो अभी ये जो स्मॉल आर है बच्चे,
this is damping factor. So different books are using different notations. किसी में B यूज किया हुआ है, किसी में R यूज किया हुआ है. So जो भी आप नोटेशन यूज कर रहे हो वही यूज करना है. ओमेगा नॉट स्क्वायर इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, K is restoring force per unit displacement and A is constant. ठीक है. So अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चे, इसमें डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है एंड डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ भी है. कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है, कौन सी ऐसी फंक्शनल फॉर्म है जो आफ्टर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट एज इट इज और फंक्शन एज इट इज or we can make first order derivative or second order derivative, it retain its form. कौन सा ऐसा फंक्शन है? A sin omega t. It is exponential. बच्चे अगर आपने साइन फंक्शन लिया है ना, साइन फंक्शन लिया, कोसाइन लिया, एक बार डेरिवेटिव लोगे वो चेंज कर जाएगा अपनी फॉर्म, दो बार डेरिवेटिव लोगे तो सेम आएगा. ठीक है. Some constant into e to power minus x. Yes. So exponential function is there. So मैं assume कर लेता हूँ कि मेरा solution जो है x is equal to some constant e raised to power alpha into t. ठीक है जी. Alpha is the root of, एक रूट भी हो सकता है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक रूट भी हो सकता है, दो रूट भी हो सकते हैं. ठीक है. सो एक्सपोनेंशियल की पावर अल्फा कुछ भी हो सकता है, दो वैल्यूज ले सकता है अल्फा, बिकॉज इट इज ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. अब अगर ये मेरा सोल्यूशन है तो मैं ये सोल्यूशन अगर वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. सो बाय यूजिंग दिस थिंग वी कैन कैलकुलेट द अननोन वैल्यूज ऑफ बी एंड अल्फा. सो यहाँ हमारे पास बी या अल्फा, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये उसका सोल्यूशन है इक्वेशन का. सो इसमें पुट करके देख लेते हैं. ठीक है. यस सर. सो इसको पुट कर देते हैं. डी स्क्वायर बी ई रेज़ टू पावर अल्फा टी डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी बाई डी टी बी ई रेज़ टू पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बी ई रेज़ टू पावर अल्फा टी. ये मैंने पुट कर दिया. जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट बी ई रेज़ टू पावर अल्फा टी, ये कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी अल्फा के अंदर. और सिंप्लीफाई करूं जब, सो ओमेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दो चीजों का, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट 0 है. सो आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा. अब b e रेज़ टू पावर अल्फा t, ये तो आपने सॉल्यूशन अज्यूम किया था, x इज इक्वल टू b e रेज़ टू पावर अल्फा t. सो ये तो 0 हो नहीं सकता. सो इट मींस सेकंड टर्म वाली 0 होगी, तो मैंने उसको 0 पुट कर दिया. ठीक है जी. अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा, सो यू कैन इजीली राइट इट्स सॉल्यूशन. अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2r प्लस माइनस 2r होल स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट. ये सॉल्यूशन मालूम है ना बच्चे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2. यस सर. मैं डायरेक्टली वो मैं डायरेक्टली ये सॉल्यूशन लिख रहा हूँ. सो अल्फा इज माइनस r प्लस माइनस r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. सो ये मेरे पास अल्फा की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ. ठीक है. नाउ आई हैव अज्यूम्ड दिस सॉल्यूशन जिसमें e रेज़ टू पावर अल्फा t थी. तो अभी मेरे पास दो सॉल्यूशन आ गए. सो मैं उनको दोबारा सॉल्यूशन को रीराइट करता हूँ. वन सर. हाँ जी बच्चे. सर नेगेटिव वाली नेग्लेक्ट हो जाएगी ना? नहीं बच्चे, नेग्लेक्ट नहीं होगी. क्यों सर? अभी करने तो दो बच्चे. ओके सर. सर और भी तो सॉल्यूशन होगा ना सर, क्योंकि ये एक होमोजेनियस डबल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो सर इसके जो ये वाले सॉल्यूशन, इनके एडिशन वाला भी तो एक सॉल्यूशन होगा बच्चे. एक एडिशन वाला सॉल्यूशन है, एक सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्यूशन है. और सर टोटल का जो ऐड करके आएगा बी. हाँ मैं वही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके सॉरी. सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू रूट्स इट विल आल्सो एक्ट एज अ सॉल्यूशन. सो हम इसको इस तरह लिख देते हैं. सो अल्फा 1 t प्लस b2 e रेज़ टू पावर अल्फा 2 t. सो अल्फा 1 को मैं प्लस वाला लिख देता हूँ, अल्फा 2 को माइनस वाला लिख देता हूँ, है ना. सो मेरा जो सॉल्यूशन, और b1 और b2 मैंने और कोई कांस्टेंट ले लिए क्योंकि मेरे पास b था एक रूट के लिए. सो मैंने उसको डिवाइड कर दिया. b1 एंड b2 अलग अलग कांस्टेंट्स हैं. सो हमारा जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट इज b1 e रेज़ टू पावर माइनस r. ठीक है बच्चे. प्लस साइन के साथ r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू t प्लस b2 e रेज़ टू पावर माइनस r माइनस साइन के साथ r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू t.
ठीक है जी। अब ये मुझे मालूम है e raised to power minus RT यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैं ये कॉमन निकाल लेता हूँ, e raised to power minus RT। सो मेरे पास सोल्यूशन हो गया B1 e raised to power R square minus omega naught square into T plus B2 e raised to power minus R square minus omega naught square into T। So this is my required solution। ठीक है जी। अब हाँ जी बच्चे। सर हमने B1 और B2 वाले टर्म्स ऐड क्यों किए हैं? बच्चे ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे कि इफ देयर आर टू सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, टू रूट्स, ठीक है, अल्फा फॉर एग्जांपल अल्फा 1 एंड अल्फा 2, सो इफ टू रूट्स आर देयर सॉल्यूशन, देयर लीनियर कॉम्बिनेशन कैन आल्सो एक्ट एज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, सो ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है। So sir x की तीन वैल्यूज होंगे, एक B1 एक B2 एंड देन थर्ड इज द, हाँ थर्ड यूज कर सकते हैं। ओके थैंक यू। ठीक है, सो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई इस फॉर्म में, x इज इक्वल टू e raised to power minus RT। अब यहाँ इस इक्वेशन से आपको क्या पता लग रहा है मुझे, ये वाली जो इक्वेशन है, कोई आइडिया लग रहा है? हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक वाली इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन था a cos omega t plus 5, ठीक है, वेयर दिस इज पीरियोडिक फंक्शन एंड दिस इज द फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। सो यहाँ अब एम्पलीट्यूड की जगह हमारे पास क्या है, e raised to power minus RT। सो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। So from this solution we can easily prove that the amplitude in case of damped simple harmonic motion is decreasing exponentially with time। और कितनी फास्ट या स्लो डिक्रीज करेगा, that depends on your damping factor small r। ठीक है, ये जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था स्मॉल r का a/2m, so it depends on this factor। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में आपके पास टर्म क्या है, r स्क्वायर एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर। r स्क्वायर इनका डिफरेंस है आपके पास स्क्वायर रूट में। सो अगर दोनों बराबर हो गए तब क्या होगा, किस तरह की मोशन होगी? अगर आर स्क्वायर यानी डैम्पिंग ज्यादा है तब किस तरह की मोशन होगी, या ओमेगा नॉट स्क्वायर ज्यादा है तो एक्सपोनेंशियल, ये जो पावर वाली है स्क्वायर रूट में, ये तो इमेजिनरी हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, आयोटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, तब किस तरह की मोशन होगी। सो ये 3 कैटेगरीज हैं बच्चे हमारे पास, कि हमारे पास 3 डिफरेंट पॉसिबल अजम्पशंस हैं। तो सर एक बार B1 B2 वाला बताना फिर से। बच्चे अगर हमारे पास, जैसे हमने अज्यूम किया कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है, सो ये आपके पास कोई अननोन कांस्टेंट है और ये उसका रूट है। बट अगर हमारे पास जब सॉल्व किया हमने, हमें मालूम चला कि हमारे पास तो 2 रूट आ गए। सो 2 रूट को एडजस्ट करने के लिए या तो मैं इसको ऐसा लिख दूं कि x इज इक्वल टू b e raised to power alpha 1t, है ना, या मैं लिख दूं x इज इक्वल टू b e raised to power alpha 2t। ये दोनों रूट हैं इसके, बट मैं किसी एक को छोड़ नहीं सकता इसमें, क्योंकि दोनों रूट है। मुझे सभी पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि किस तरह का बिहेवियर है डिस्प्लेसमेंट का इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो मैंने इन दोनों को कंसीडर कर लिया। सो इफ अल्फा 1 इज रूट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अल्फा 2 इज रूट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आई नो दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो रूट ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये आप मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे कि ये, और अगर आप यूज करना चाहते हो तो इस इक्वेशन, इस डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को, सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देख लो, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। सो इफ two roots are solution of two numbers are solution of a given differential equation, their linear combination will also act as a solution of that particular differential equation। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी पावर में नहीं लिखा है इसको कि e raised to power alpha t स्क्वायर या क्यूब। सो सिंपली मैंने एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, और e raised to power alpha 1t फॉर्म मैंने वही रखी है एक्सपोनेंशियल, प्लस दूसरा रूट है b2 e raised to power alpha 2t। सो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक रूट होगा। ठीक है सर, एक सेकंड सर, हाँ पीछे वाली स्लाइड पे चाहिए जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। इसमें सर बहुत सारी assumptions है सर हमने। मुझे जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया ना, तो उसमें अजम्पशंस काफी थी। जैसे ही हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन से स्विच किया डैम्प्ड ऑसिलेशन में, हमने अजम्पशंस थोड़ी कम कर दी, हमने जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्लूड कर ली। सो जैसे जैसे, क्योंकि हम पहले सिंपल चीजों को समझते हैं उसके बाद डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं। सो अभी हम डैम्प्ड की तरफ गए, फिर हम फोर्स्ड ऑसिलेशन की तरफ भी जाएंगे। सो आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हो, एक साथ नहीं। ठीक है, सो एक एक करके हम अजम्पशन रिमूव करते रहेंगे और हमारा जो सॉल्यूशन है। बच्चे आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है सर। ये जो हमने x की वैल्यू ली है, हाँ जी,
ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों लिया? बच्चे अभी आई थिंक क्लास का टाइम हो गया दूसरी, जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, बाकी लीव कर सकते हैं बच्चे। सो x की वैल्यू आप सोच रहे हो कि भी अल्फा e रेज़ टू पावर अल्फा t क्यों लिया, यही क्वेश्चन है बच्चे? हाँ जी सर। ये इसलिए क्योंकि आप एक्सपोनेंशियल का एक बार डेरिवेटिव लो वो तब भी e रेज़ टू पावर ही रहेगा, 2 बार डेरिवेटिव लो तब भी e रेज़ टू पावर ही रहेगा, वो फंक्शन फॉर्म चेंज नहीं होगी, क्योंकि मुझे एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर माइनस rt ये जो फैक्टर है मुझे बाहर निकालना था। ये तब मैं बाहर निकाल सकता हूं अगर वो अपनी फॉर्म रिटेन करे। अगर मैं साइन या कोसाइन फंक्शन यूज करूं तो मैं कैसे बाहर निकालूंगा? एक टर्म साइन वाली हो जाएगी, दूसरी कोसाइन वाली, फिर तीसरी साइन वाली, है ना? तो मैं इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकाल पाता। ठीक है? हाँ जी बच्चे। सर अगर ये होमोजेनियस नहीं होता तो हम ये लास्ट वाला जो थर्ड सॉल्यूशन ये है फिर एडिशन आपने ऑफ द टू नहीं कर पाते। ये नहीं कर पाते बच्चे। हाँ ठीक। ठीक है? So I think class time is over. So we'll do the remaining part in next class. Okay, Thank you, sir. Thank you. Welcome. Thank you, sir. हाँ जी बच्चे। Thank you, sir.